السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میں ہوں فائزہ ملک۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز اس دعا کے ساتھ۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے مشکلات کے حل کا دروازہ کھول دے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ اور آپ کو بتائیں کہ شوگر انکوائری کمیشن پر ایکشن پلان کی وزیر اعظم نے منظوری دے دی۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کی میڈیا بریفنگ، کہا شوگر بحران پر سبسڈی کا معاملہ نیب کو بھیجا جا رہا ہے۔ 2018 میں عمران خان کو طاقتور کے احتساب کے لیے مینڈیٹ ملا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی شہزاد اکبر نے بتایا کابینہ نے فیصلہ کیا ہے شوگر کمیشن رپورٹ پر پورا ایکشن پلان بنایا جائے۔ پہلے مرحلے میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سیاسی رہنماؤں کی شوگر ملز بنا کر ہیرا پھیری کی کہانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ غریب کا احتساب اور استحصال ہر دور میں کیا گیا۔ طاقتور کا احتساب کرنا بہت بڑا اقدام ہے۔ چینی بحران میں سیاسی لوگوں نے بھی ہاتھ رنگے۔ چینی بحران میں 29 ارب کی سبسڈی کا معاملہ نیب کو بھیجا جا رہا ہے۔ شوگر ملز نے سبسڈی کی آڑ میں جو غلط کام کیے وہ نیب دیکھے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا تھا تحریک انصاف کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل شاندار ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے عوام کا مستقبل داؤ پر لگانے والوں کے احتساب کا وعدہ کیا تھا۔ شوگر مافیا میں بڑے لوگ شامل ہیں۔ عوامی مفاد کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد سب کا احتساب کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ چینی کھانے والوں کے منہ کڑوے ہونے لگے۔ وفاقی کابینہ نے عوام کو اربوں کا ٹیکہ لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی ہے۔ جس نے چینی کھائی اس کی شامت آئی۔ ملک میں چینی کا بحران پیدا کر کے اربوں روپے ڈکارنے والے اب ہو جائیں تیار۔ وزیراعظم نے شوگر کمیشن رپورٹ پر ایکشن پلان کی منظوری دے دی۔ چینی سکینڈل میں وزیراعظم کے سابقہ دستراز جہانگیر ترین کے ساتھ قاف لیگ کے مونس صلاحی، نون لیگ کے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا نام آیا۔ FIA کے تحقیقات کے مطابق الائنس ملز، JDW گروپ اور العربیہ مل اوور انوائسنگ 2 کھاتے رکھنے اور بے نامی فروخت میں ملوث پائے گئے۔ چینی سکینڈل سینکڑوں ارب کی بے نامی خریداری کرنے والے 3000 بروکرز اور آڑتیوں کا انکشاف ہوا۔ 50,000 غیر رجسٹرڈ خریداروں میں سے 40,000 نے ٹیکس ریٹرنز جمع نہیں کرائے۔ شوگر انکوائری کمیشن نے 50,000 ایسے غیر رجسٹرڈ خریداروں کا پتہ لگایا ہے جو اربوں روپے مالیت کے لین دین میں ملوث ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اس دوران ملک میں آٹے اور گندم کی وافر دستیابی یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملک میں گندم کی ضروریات پوری کرنے پر غور کیا گیا ہے۔ آٹے کی قیمتوں پر کنٹرول کو یقینی بنانے کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ ملک میں آٹے اور گندم کی وافر دستیابی یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گندم کی بین الصوبائی نقل و حرکت سے متعلق پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ چیک پوسٹیں ختم کر کے گندم درآمد کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ گندم درآمد کی مقدار پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ گندم کی درآمد نجی شعبے کے ذریعے کی جائے گی۔ گندم کی درآمد پر عائد ڈیوٹی بھی مکمل طور پر ختم کی جائے گی۔ گندم کی بیرون ملک سمگلنگ کی روک تھام بھی یقینی بنائی جائے گی اور گندم اور آٹے کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گندم کی پیداوار پر غور کیا گیا۔ عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ اس دوران ملک میں آٹے اور گندم کی وافر دستیابی یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملک میں آٹے اور گندم کی وافر دستیابی یقینی بنائی جائے گی اور گندم کی بین الصوبائی نقل و حرکت سے متعلق پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ چیک پوسٹیں ختم کر کے گندم درآمد کی اجازت دی جائے۔ گندم درآمد کی مقدار پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے گندم کی درآمد نجی شعبے کے ذریعے کی جائے گی اور درآمد پر عائد ڈیوٹی مکمل طور پر ختم کی جائے گی، جبکہ بیرون ملک سمگلنگ کی روک تھام بھی یقینی بنائی جائے گی۔ گندم اور آٹے کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گندم کی پیداوار پر غور بھی کیا گیا ہے۔ ملک میں پہلے ہی بحران ہے اور مزید بحران پیدا کیے جا رہے ہیں۔ قمر زمان قائرہ نے حکومت پر لفظی گولہ باری کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی طرف سے ہر ہفتے ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی قومی قیادت نے یکجہتی ظاہر کی ہماری سب نے سنی۔ APC-NFC کا آئین سے متصادم نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ کرتی ہے۔
غیر آئینی اقدام کو آج کی اے پی سی مسترد کرتی ہے. NFC کے نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے. وہ آئین کے متصادم ہے. اس میں کوئی ایڈوائزر بیٹھ کے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. لہذا صدر پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے, حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس کو واپس لیا جائے, منسوخ کیا جائے اور آئین کے مطابق NFC کا جو نیا نوٹیفیکیشن ہے جو آئین کی روح کے مطابق ہے اس کو جاری کیا جائے اور آگ سے نہ کھیلا جائے. مہنگائی کے عوام پر وار جاری ہیں. پنجاب میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 50 روپے مہنگا کر دیا گیا. نان بائی ایسوسی ایشن نے بھی روٹی اور نان کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے. جبکہ بلوچستان میں بھی آٹے کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا. آٹا مافیا، چینی مافیا، پھل فروٹ مافیا، پیٹرول مافیا، پاکستانی عوام مافیا کے جال میں بری طرح پھنس چکی. حکومت کی جانب سے صرف مافیا کی تکرار، مافیا کے کنٹرول کے لیے عملی اقدامات سے قاصر. فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب کی منمانیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی. حکومت سے بے خوف مافیا نے ایک اور وار کرتے ہوئے آٹے کا 20 کلو کا تھیلا از خود 50 روپے مہنگا کر دیا. صوبائی دارالحکومت لاہور میں 20 کلو کا تھیلا 1000 روپے سے زائد میں فروخت ہونے لگا. گزشتہ 10 روز میں آٹے کی قیمت میں دوسری مرتبہ اضافہ ہوا ہے. 10 روز قبل آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 805 روپے میں فروخت کیا جا رہا تھا. دوسری جانب فلور ملز ایسوسی ایشن کی خودسری کو دیکھتے ہوئے نان بائی ایسوسی ایشن نے بھی موقع غنیمت جانتے ہوئے روٹی اور نان کی قیمتیں بڑھانے کے لیے حکومت کو ایک بار پھر ڈیڈ لائن دے دی. نان بائی ایسوسی ایشن نے 10 جون سے روٹی اور نان کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ملز مالکان خود ساختہ طور پر آٹے کے ریٹ بڑھا لیتے ہیں. ریٹ کم نہ ہوئے تو روٹی 10 روپے اور نان 15 روپے میں فروخت کیا جائے گا. آٹے اور میدے کے ریٹ کم نہ ہوئے تو روٹی اور نان کے ریٹ بڑھ جائیں گے. 10 جون تک حکومت آٹے اور میدے کے ریٹ کو کم کرائے. بلوچستان میں بھی آٹے کا بحران پھر سے سر اٹھانے لگا ہے. کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں منافع خوروں نے آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا. رپورٹ کر رہے ہیں عبدالغنی کھاکر. کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں حکومتی عدم توجہی کے باعث یوں تو دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے سے شہری پہلے ہی مشکلات کا شکار تھے، مگر منافع خوروں نے آٹے کی قیمتوں میں بھی مزید منمانا اضافہ کر دیا ہے. کوئٹہ کے اوپن مارکیٹ میں 2200 روپے کے حساب سے فروخت ہونے والے فی 50 کلو گرام آٹے کے ایک تیلے کی قیمت بڑھا کر 2800 روپے مقرر کر دی گئی ہے. اکثر دکانوں میں سرکاری نرخنامے بھی اویزا نہیں کیے گئے ہیں. گورنمنٹ ان چیزوں پہ نظر رکھے کہ کہاں کہاں رکاوٹیں ہیں، کون کون اس کو بلیک میل کرتا ہے، کون کون حکومت کو پریشان کرتا ہے. تو گورنمنٹ کی نظر میں تو ہوتا ہے، لیکن اگر گورنمنٹ ایکشن نہیں لیتی تو پھر تو یہ ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی کرتا ہے. ہمارے پاس نہ زبان ہے، نہ آنکھیں ہے، نہ کان ہے کہ ہم کچھ سن لیں، یا نہ کوئی ایسا در ہے کہ ہم اس کو کٹکھٹائیں اور ہماری فریاد وہ سنیں. جتنی بھی عام عوام کی استعمال کی چیزیں اس کے ساتھ بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو اس پہ غریب عوام کو بہت ہی زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. ادھر دوسری جانب فلور ملز ایسوسی ایشن کے مقامی رہنما عبدالعلی کہتے ہیں کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافے کی ایک اہم وجہ گندم کی عدم دستیابی ہے، کیونکہ نجی فلور ملز پر اوپن مارکیٹ سے گندم کی خریداری پر پابندی عائد کی گئی ہے. کالی بیڑے جو ہے نا ابھی بھی مکمل خوراک میں ہے، اور کچھ ایسی چیزیں وہ قصدن ہی کرتے ہیں کہ کہیں گندم خراب کر کے آگے پیچھے کر کے، تاکہ اس میں ان کی کرپشن ظاہر نہ ہو جائے. اگر کوئی ناجائز کرتے ہیں پرائسز کے حوالے سے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو اس کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ بھی اس چیز میں جو ہے نا وہ احساس نہیں ہے. آٹے کی قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے صوبائی محکمہ خوراک کی جانب سے بھی تاحال کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ صوبے میں آئے روز آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کانکر، سچ نیوز، کوئٹہ. پیٹرول سستا ہونے کا کوئی اثر نہیں پڑا. مہنگائی بدستور قابو سے باہر ہے. عام آدمی کا دیوالیہ نکل گیا. شہری کہتے ہیں کہ حکومت دعووں کے باوجود مہنگائی کرنے والی مافیا کو لگام نہیں دے سکی، جس کی وجہ سے چیزوں کے دام آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. مہنگائی ہے کہ بس مت پوچھو. عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے. عمران خان صاحب یہ سب باتیں کر رہے ہیں کمروں میں بیٹھ کے. ان کو اے سی میں بیٹھ کے ان کو کیا معلوم غریب آدمی کیا کما رہا ہے. یہ تو ٹھنڈک میں بیٹھے ہیں. یہ کیا سمجھیں گے؟ یہ نہیں سمجھیں گے غریبوں کی بات. یہ بالکل نہیں سمجھیں گے غریبوں کی بات. 5 سال آئیں گے، اپنا کھاتا پورا کریں گے اور نکل لیں گے پتلی گاڑی سے. پھر کہیں گے دوسری آئے گی گورنمنٹ، وہ کہے گی قرضہ خالی ہے، وہ بھاری ہے، یہ بھرا ہوا، وہ خالی ہے، یہ خالی ہے. غریب آدمی جی رہا اللہ کے توکل پر، بس اس سے دعا کرتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے. زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں. اگر قورمہ نہیں کھاتا تو دال کھاتا ہے، دال نہیں کھاتا تو چٹنی کھاتا ہے.
जिंदगी जो है ना वो गुजर रही है, मुश्किल भी है, आसान भी है। आसान खुद बनानी पड़ती है, वो इसलिए बनानी पड़ती है कि चलो छोड़ो यार, गोश्त को चटनी बना के खा लो, ये आसानी हो गई। वो उतनी की उतनी महंगाई है, और एक दफ़ा जो रेट पेट्रोल के भी कम हो जाए, लेकिन वो रेट नहीं कम होते किसी भी चीज़ पे। नहीं, महंगाई तो है, ऐसा थोड़ी है कि महंगाई नहीं है, महंगाई है, क्योंकि गरीब आदमी के लिए जाहिर सी बात है मसले मसाइल तो हैं, तो नहीं कर सकता, या तो वो डबल काम करता है, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, गैस के बिल ज़्यादा हैं, तो उसी तरीके से पूरा करता है। डबल काम करने के बाद मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, जिनकी नौकरियां हैं, जिनके पास पैसा है, वो अमीर पे अमीर होते जाता है। जाहिर सी बात है हर चीज़ महंगी हो जाती है तो उनकी हर चीज़ बढ़ जाती है। डॉलर के साथ पैसे चीज़ें बढ़ गए, उनकी सब चीज़ें बढ़ गई। गरीब आदमी पेशता की तनख्वाह इतनी है जितनी मिलनी है उनको, मजदूरी करेगा ठीक है। मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट का फेलियर है एक तरह से, कि इनको चाहिए कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लें। आवाम इस वक्त दौरे अजाब से गुजर रही है, कोरोना का अजाब है, एक इनकी इंतजामी फेलियर की वजह से ये बहरान जन्म ले रहे हैं। इनको चाहिए अपने एयर कंडीशनड ऑफिस से निकलें और मार्केट में आए और लोगों के दरमियान बैठे, उनकी मसाइल देखें और उसी वक्त एक्शन लें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। एसी के कमरों में बैठकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर पॉलिसीज नहीं बनते, को पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, मैदान में आना पड़ता है ताकि लोगों को रिलीफ मिले। वो कंपटीशन से अलग कर सोच रहे हैं, और वो जो है आटे की महंगाई की वजह से जो आम इंडिविजुअल है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। घर में जो लोग बैठे हुए हैं जिनको आटे की बोरी चाहिए, हुकूमत की तरफ से उनको वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उनको मजबूरन वो महंगी रोटी जो वज़न में भी कम है और जिसका कोई मयार भी नहीं हो, पता नहीं कौन सा वो आटा इस्तेमाल करते हैं, वो मजबूरन वो खा रहे हैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले या लोगों को आटा प्रोवाइड किया जाए। आजकल मुल्क जो है वो सारे माफिया के हाथों में चढ़ा हुआ है, तो हुकूमत से अपील है कि खुदारा गरीबों को जिंदा रहने दे, ठीक है, हमें अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने दे, और मेहरबानी करके आटे का ये बहरान जितना है वो ख़त्म कर, क्योंकि खाने के लाले पड़ गए हैं हमें, आटा मिल नहीं रहा, पेट्रोल मिल नहीं रहा। कम से कम सर 200-300 रुपये सर, मतलब आटे की बोरी जो है वो सर महंगी हो गई है सर, और मसनूई तौर पे सर ये आटे की मौत जो मतलब बहरान पैदा कर रहे हैं सर, आटा मिल रहा है लेकिन सर ब्लैक पे सर ये बेच रहे हैं सर ये लोग, और गरीब लोग तो सर एक रोटी के लिए भी सर परेशान है। सामने रखेंगे सिंध हुकूमत का एनसीसी में मौक़िफ़ कुछ और बाहर कुछ होता है। हमने स्पेशली जो हमारा जो आटा और उस हवाले से आज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला महमूद खान साहब जो है वो आज वज़ीर आज़म साहब से इस हवाले से मीटिंग भी कर रहे हैं और उस चीज को वहां पे उठा रहे हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चेयर करते हैं, तमाम मीटिंग्स में मुतवातिर और सबसे पहले जो टाइम एनसीसी में मिलता है, सबसे पहले टाइम और सबसे ज्यादा टाइम वो वज़ीर आला सिंध साहब लेते हैं एनसीसी की मीटिंग में, और जितने तजावीज उनके होते हैं, जितनी चीजें होती हैं, यह पहली दफा तारीख में हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जितने भी फैसले किए वो सूबों के साथ, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब के वज़ीर आला, बशमूल गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और बशमूल वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर, सारे फैसले कंसेंसस से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2-2, 3-3 घंटे करके किए। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं शाम को टीवी पे आ जाते हैं तो मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, वज़ीर आला कुछ कह रहा है, उनके जो लीडर है बिलावल वो कुछ और कह रहा है। इसलिए मैं उनको बता रहा हूं कि खुदारा ये जो पॉलिसी है ये खलवतों और जलवतों में, इसमें हकीकत पसंद बने। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया, माफिया ने गायब कर दिया। मुल्क भर में जारी पेट्रोल की किल्लत से शहरी परेशान हैं। पेट्रोल पंप मालिकान को नोटिस, जुर्मानों के बावजूद सूरत हाल दुरुस्त न हो सकी। पेट्रोल की कीमत में कमी पाकिस्तानियों के लिए अजाब बन गई। एक हफ्ते कबल सस्ता होने वाला पेट्रोल ताहाल नायाब है। इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए शदीद गर्मी में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जिन चंद एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब भी है तो वहाँ मोटरसाइकिलों, रिक्शों और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है और मोटरसाइकिल सवारों को तवील इंतजार के बाद सिर्फ 200 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है। पंजाब के सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की 1.25 करोड़ की आबादी के लिए शहर भर में 350 पेट्रोल पंप कायम है, जिनसे यौमिया औसतन
3 लाख लीटर पेट्रोल फरोख्त होता है, जिनसे यौमिया औसतन 3 लाख लीटर पेट्रोल फरोख्त होता है। लेकिन 1 जून से पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद से अब तक बेशतर पंपों पर पेट्रोल की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी को जीर्ण बना दिया है। रावलपिंडी में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, कराची वालों की भी मुश्किलात कम न हो सकी। सिर्फ PSO के पास पेट्रोल मौजूद है, लेकिन इनके पंप्स की तादाद बहुत कम है। दूसरी जानब प्राइवेट कंपनियों के पेट्रोल पंप्स में बेशतर पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। ताम हुकाम के मुताबिक सूरत हाल में बेहतरी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। दरामदी LNG मजीद सस्ती कर दी गई। पंजाब और इस्लामाबाद के लिए CNG की कीमत में भी 7.5 रुपए फी लीटर की कमी कर दी गई। ओगरे ने सुई नार्दर्न के लिए गैस की कीमत में $1.39 और सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में $1.48 फी MMBTU की कमी कर दी। ओगरे की जानिब से जून के लिए जारी होने वाली नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नार्दर्न के लिए LNG की नई कीमत $6.12 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। सुई सदर्न के लिए नई कीमत $6.27 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। इससे केवल मई में सुई नार्दर्न के लिए LNG की कीमत $7.51 फी MMBTU और सुई सदर्न के लिए LNG की कीमत $7.45 फी MMBTU मुकर्रर की थी। पंजाब और इस्लामाबाद में CNG की कीमत में कमी कर दी गई है। CNG की कीमत में 7.5 रुपए फी लीटर की कमी कर दी गई। कीमत में कमी का इतलाक हो गया। कमी तो हो गई, अब पेट्रोल मिलना मुश्किल हो गया। विफाकी दारुल हुकूमत के बेशतर पेट्रोल पंप्स शहरियों को खाली हाथ भेज रहे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत को तेल के दाम में कमी के साथ साथ दस्तयाबी को भी यकीनी बनाना चाहिए। ये तो हमारे मुल्क का आपको पता है शुरू से इसी तरह है, जो भी चीज़ अवाम के लिए वेलफेयर करते सस्ता कर लेते, तो हमारे मुल्क में जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं वो फौरन अपने माल जमा कर लेते, ठीक है, और गरीब लोगों के लिए मुहैया नहीं होती है। तीसरा चौथा दिन है ये रावलटोन के रिहायशी है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है यहाँ से। आगे पीछे PSO के जितने पेट्रोल पंप है वहाँ से मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से तो जानबूझ के एजेंसीज वाले कर रहे हैं। जब महंगा होता है तो ये दे देते हैं, जब अब ये सस्ता हुआ है तो थोड़ा सा अपने लिए लॉस बर्दाश्त नहीं कर रहे और अवाम को खजल कर रहे हैं। मेरा डेली का रूट है यहाँ से, तो गुजरता हूँ तो नहीं दे रहे होते। आगे भी काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत हो रही होती है, काफ़ी पेट्रोल पंप पे जा रहे होते हैं तो बिल फर्ज कोई 10 से 15 पंप से एक पंप पे से जाके मिल रहा होता है। 2-3 दिन हो गए, 4-5 दिन बल्कि हो गए, इधर नहीं मिल रहे। जब से महंगे पेट्रोल नहीं मिल रहा, जहाँ पे भी जा रहे मिलता नहीं है। आज कोई 2-4 जगहों पे पेट्रोल मिल गया, वरना 3-4 दिन से पेट्रोल नज़र ही नहीं आ रहा। कहीं भी जाने से पहले 5-7 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है कि पेट्रोल मिल जाए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इमरान खान से हम यही गुजारिश करेंगे कि कम से कम और नहीं, ये बेसिक नेसेसिटीज़ तो आटा, घी, चीनी, ये पेट्रोल जो बुनियादी ज़रूरतें हैं इनको तो कम से कम वो अवेलेबिलिटी हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन को फारिग करने के फैसले की मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया है। सईद गनी कहते हैं नून लीग का स्टील मिल की गैस बंद करने का फैसला नामुनासिब था। काबीना इजलास में असद उमर के मौक़िफ़ का शिद्दत से इंतजार है। PMLN की हुकूमत का स्टील मिल की गैस को बंद करने का फैसला जो है वो इंतहाई नामुनासिब था और इस इदारे को तबाह करने का एक पहला कदम था। जिस वक्त स्टील मिल बंद हुई, मेरा ख्याल है कि उस वक्त उसकी जो पैदावार थी वो 65% अपनी कैपेसिटी पर वो चल रही थी, और अगर उस वक्त के आदाद व शुमार उठाकर देखें तो जून 2015 से पहले आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोडक्शन थी वो स्टील मिल की बढ़ती गई और 65% पर जब आ गई तो वो ब्रेक इवन पर थी, वो खसारे में नहीं थी उस वक्त, या खसारा से निकलने के करीब थी। अगर उसी रफ्तार से स्टील मिल चलती रहती तो शायद उसी बरस में या चंद महीनों में वो खसारे से निकल आती। 2008 से 2013 तक जब पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में रही है, पाकिस्तान स्टील मिल में एक भी आदमी को भर्ती नहीं किया गया। काबीना का इजलास सुनाए उन्होंने रखा है और काबीना के एजेंडे पर स्टील मिल के मुलाजमीन को निकालने वाली बात भी है। स्टील मिल अपने ATMs को देने के मुतल्लिक भी कोई बात शायद होगी, तो मुझे इंतज़ार होगा कि उस कैबिनेट मीटिंग में असद उमर साहब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। ECC के पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को फारिग करने पर मिल मुलाजमीन चिल्ला उठे, कहते हैं हमें एतमाद पे लिए बगैर निकाल दिया गया।
हमें बताया जाए किस कानून के तहत निकाला गया है। मिल्स मुलाजमीन की दुहाइयों ने असद उमर के पुराने दावे याद दिला दिए। 9,000 से जायद पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को अचानक इदारा बदर कर दिया जाए तो उंगलियां तो उठेंगी। कहाँ गए वो वादे कि अगर मुलाजमीन के साथ कुछ हुआ तो हम मुलाजमीन के साथ खड़े होंगे, और कहाँ ये आलम के एक लफ्ज कहने की भी जहमत गवारा न की। साबिक विफाकी वजीर असद उमर ने भी कहा कि मेरी बात रिकॉर्ड कर लें, कभी स्टील मिल्स मुलाजमीन के खिलाफ फैसला हुआ तो वो मुझे साथ खड़ा पाएंगे। ये कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तो मैं तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं बल्कि खास तौर पे स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। हमारे डिसमिस के लेटर जो है हमारे टीसीएस के जरिए और डाक के जरिए घुमा रहे हैं पीछे। अगर आप इस तरह फैसला करोगे तो इस फैसले को हम कबूल नहीं करेंगे। इस फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट में जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और हर उस फोरम पे जाएंगे जहां हमें इंसाफ की तवक्कु होगी। उन्होंने कहा था मैं रोजगार दूंगा, आपके सुनने में गलती हुई थी। उन्होंने बोला मैं 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार करूंगा। 10,000 तो ये कर दिए, बाकी 6,000 ये और इदारों से निकालेंगे। इसी में माफिया बैठी हुई है। कल से हम यहाँ बैठे हैं, कोई भी नहीं आया, हुकूमती नुमाइंदा कोई एक एमपी भी नहीं आया यहाँ पे, जबकि उनके यहाँ रोज आते हैं, लेकिन वो कल से यहाँ पे कोई नहीं आया, ना कोई राब्ता कर रहा है, ना कोई फोन आया। बगैर शोकाज, बगैर वार्निंग, बगैर एक्सप्लेनेशन, बगैर इंक्वायरी के टर्मिनेशन लेटर दे दिया है। मुझे बताया जाए मेरा क्या कसूर है। उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद आज खत्म हो गई है। हमें उम्मीद थी तनख्वाह बढ़ेगी, स्टील मिल बहाल करने का वादा किया था इमरान खान साहब ने, उन्हीं की हुकूमत ने हमें बरतरफी का फैसला किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन इस अंधेर नगरी पर सर पकड़े बैठे हैं। उनका कहना है कि हमसे बिना पूछे नौकरियां छीन ली गईं, बताया जाए ये कैसे हुआ। अब हुकूमत लाख दलीलें दे, मगर नए पाकिस्तान में भी आम आदमी के इस्तेहसाल की वही पुरानी कहानी दोहराई गई है। असद उमर और नहीं तो अपने ही कहे की लाज रख लें, मुलाजमीन के जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते तो 2 बोल बोलकर दिलासा ही दे दें। सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि कराची की आबादी हर साल बढ़ रही है, मगर पानी की किल्लत बरकरार है। K4 मंसूबे का रास्ता तब्दील करने से कीमत पर असर और मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। इस शहर की आबादी पूरे मुल्क की आबादी 2.4% से बढ़ती है। इस शहर की आबादी 3.5% से 3.8% के दरमियान हर साल बढ़ती है। 2007 से 2020 तक आबादी तो बढ़ी, एक बूंद कतरा पानी का इजाफा नहीं है। अगर 3 करोड़ की आबादी हो जाए और उसके ऊपर आप इजाफा लगाएं तो आप सोचें कि ये आबादी दुगनी हो जाएगी अगले 10 साल में। इसके पानी के निजाम के ऊपर क्या तवज्जो दे रही है। 50% से ज्यादा पानी की कमी का शिकार कराची के बासी गर्मियों में तो और मुश्किल में फंस गए। शहर के कई इलाकों में किल्लत आब का बड़ा मसला पैदा हो गया। कोरंगी के रिहायशी भी पीने के साफ पानी के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं, जो कहते हैं कि वो नौकरियां छोड़कर पानी भरने निकलते हैं क्योंकि लाइनों में पानी नहीं आता। हम पानी लेने आए, अपनी रोजी रोजगार छोड़ के पानी लेने आते हैं। हमारे सेक्टर में पानी नहीं आता, लेकिन वहाँ पे बर्फ खानों को पानी दिया जाता है, थल्लों को दिया जाता है, हम लोगों को पानी नहीं दिया जाता। 1.5-2 घंटे 12 बजे से लाइन लगाएंगे तो 1 बजे नल आता है। फिर यहाँ रश भी बहुत होता है, आपको देख लें, हर आदमी परेशान है पानी के लिए। यहाँ पे कभी लाइट नहीं होती है, जब लाइट नहीं होती 2 घंटे की 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है, फिर उसके बाद पानी भरो, फिर एक चक्कर लेके जाओ, फिर लाइट चली जाती है, फिर कभी वाटर बोर्ड की तरफ से पानी बंद हुआ होता है, कभी कुछ है। मेन वाल जहां से पानी की सप्लाई चलती थी उस पर मफाद परस्त अनासिर का कब्जा है, जिसमें वाटर बोर्ड के एहलकार भी शामिल हैं, और उन लोगों को पानी सर्व किया जाता है जहां से मंथली आमदनी होती है। और हमसे ये कहा जा सकता है कि तुम लोगों की हैसियत
ये है कि तुम 18% रिकवरी देते हो। सर मुझे जो तकरीबन 1-2 साल हो गए, मैं इसी तरह आपके सामने ये मादूर आदमी हूँ, मैं इसी तरह पानी भर के लेके जाता हूँ। और मैंने दरखास्तें भी MD को भी दी हुई हैं, HE को भी दी हुई हैं, अपना HTM को भी दी हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। पानी कम होने की वजह से बनाते कम हम बड़ी मुश्किल से गर्मी से पानी भरते हैं। पीने का जो है खाना बनाना है उसके लिए भी पानी नहीं है यहाँ पे। पानी तो अभी आ रहा है, आधे आधे एकदम शॉर्ट हो गया है पानी, लाइन फट गई है। कौन सी लाइन फट गई है? अब हम तो परेशानी हो रही है ना, सारी मुश्किल पानी की वजह से। पानी मेन मसला ही पानी का है, मेन मसला ही पानी का है। पानी होगा तो बंदा पाक साफ होकर निकले ना घर से। पानी है उस तरफ है, जिसका आता है, जिसका नहीं आता है ही नहीं, लाइन ही नहीं है। ये हमारा जो टुकड़ा है तकरीबन जो है ना 4-5 साल से मुतासिर है पानी के सिलसिले में। आए दिन हर रमजानों में खड्डे होते रहते हैं, निकाल के देखते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें इधर उधर गई हुई हैं। अब पता नहीं कौन इसके अंदर अनासिर ऐसे मिले हैं जिसका कोई पता ही नहीं है कि किसने किसको क्या कर दिया है। पानी खोलते हैं वो पीछे से पीछे रह जाता है, यहाँ वाले परेशान होते रहते हैं। लोगों ने बोरिंग कर करके वो मार के और इसके अंदर अपने कनेक्शन लाइन का वो हल कर दिया है कि जो पानी रहा था वो भी नहीं आता। बच्चे पढ़ने नहीं जाते स्कूल, सब बेचारे ये काम करते हैं, तालीम से सब हफ्ते रह गए। मदरसा बराबर ये रहा, इसमें पानी नहीं, वजू नहीं, खारा पानी इस्तेमाल करते हैं। और मस्जिद में भी खारा पानी इस्तेमाल करते हैं। जो आंखों में लेंस हो, जिनके कपड़े होते हैं, उनके तकलीफ होती है। वजू करते हैं ना तो उसके लेंस का पानी वो आंखों में लगता है और तकलीफ होती है। कोरंगी 5.5 हमारा मेन पम्प है। कोरंगी 5.5 से पानी चलता है इक्यावनी मोहम्मद अली कॉलोनी का। पहले सप्लाई में मिलती थी 4 पोल जुम्मा कोट के मोड़ पे से, वहाँ पे एक नाजायज वाल लगा दिया गया जो हमारा पानी रोक दिया गया। पहले पंपिंग हमारी 4 घंटे की थी, अब 1 घंटे की कर दी गई है। जो हमारा पानी चलता है जुम्मा कोट के अंदर नाजायज पंप लगे हुए हैं, वहाँ माफिया एक वहाँ पे बैठा हुआ है जो 700 रुपये की सुजुकी बेच रहा है और 4,500 रुपये का टैंकर भेज रहा है भर के। हमारे से का पानी चलता है, वो लोग अपना हाइड्रेन चला के पानी खींच लेते हैं। पानी भर के ला रहे, पानी लेने के लिए निकलते हैं, पानी नहीं आता तो आगे लाइन में आते हैं, लाइन में पानी नहीं होता ना, फिर तैयार मस्जिद जाते हैं, तैयार मस्जिद से पानी लाते हैं, हाथ दर्द जाते हैं। मस्जिद के लिए हमें बहुत परेशानी होती है, वजू के लिए खारा पानी ऐसा है जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ होता है, उनको बेचारों को बहुत तकलीफ होती है। हमारी आंख का भी ऑपरेशन हुआ है, बहुत तकलीफ होती है। और पानी यहाँ आता नहीं है, बत्ती आती है, थोड़ा बहुत आता है, बहुत परेशानी होती है। घरों में पानी होता नहीं है, बच्चे तंग हुए होते हैं, कामों पर से रात को थके हुए आते हैं, परेशान होते हैं, कहाँ से पानी ले जाएं। इस तरीके से यहाँ पर बहुत परेशानी है पानी। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। मुतासरा 47 अजला में फूड सिक्योरिटी, महकमे ज़राअत और अफवाज पाकिस्तान का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। वसी पैमाने पर रकबे का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया और स्प्रे का अमल भी जारी है। मुल्क भर में 5,245 स्क्वायर किलोमीटर रकबा पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। 40 अजला के मुतासरा इलाकों में 1100 से ज्यादा टीमें इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। मुल्क भर में 2,60,785 स्क्वायर किलोमीटर रकबा पर सर्वे किया जा चुका है। सुबह पंजाब में पिछले 24 घंटों में 1,14,935 हेक्टेयर एरिया पर सर्वे किया गया। मियांवाली और डीजी खान अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 71 हेक्टेयर एरिया पर ऑपरेशन किया गया। सुबह सिंध में पिछले 24 घंटों में 49,811 हेक्टेयर एरिया पर सर्वे किया गया। 3 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 67 हेक्टेयर एरिया में ऑपरेशन किया गया। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 24 घंटों में 80,580 हेक्टेयर एरिया पर सर्वे किया गया। 7 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 606 हेक्टेयर एरिया में ऑपरेशन किया गया। सुबह बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटों में 1,30,417 हेक्टेयर एरिया पर सर्वे किया गया। 35 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 3,417 हेक्टेयर एरिया में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। विफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरत बनाना मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अव्वलीन तरजीह है। सफाई के निजाम को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। मेयर शेख अंसर अजीज कहते हैं कि शहरी कहीं भी फैला हुआ कचरा देखें, MCI की हेल्पलाइन पर बताएं। अलमदार बलोच की रिपोर्ट। इस्लामाबाद शहर को खूबसूरत बनाने के लिए MCI की सफाई मुहिम जारी है और मुख्तलिफ सेक्टर से कूड़ा क्रिकेट उठाया जा रहा है। इस मुहिम की निगरानी खुद मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा मकसद विफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों को साफ सुथरा माहौल और पुरसुकून फिजा फराहम करना है। बात के लिए जो है बड़ा जरूरी है क्योंकि ये कैपिटल है और हमारा फेस ऑफ द कंट्री है, तो हम इसको साफ सुथरा रखें और इसके लिए हम जो है मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। और जहाँ की भी हमें शिकायत आती है तो वहाँ पे हम फौरी तौर पर सेक्शन लेते हैं। हमारी हेल्पलाइन है 1334, वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं,
तो हमारा यही है कि जी कि इस्लामाबाद को जो है वो साफ सुथरा रखा जाए। डायरेक्टर शोबा सैनिटेशन सरदार खान जिमरी का कहना था कि शहर की खूबसूरती MCI की अवलीन तरजीह है, अवाम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अगले हफ्ता पूरा इसी तरह हम इसको हर सेक्टर में जा रहे हैं। आज जैसे हर सेक्टर में हमारी एक्टिविटी चल रही है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी एक हफ्ते तक इस तरह जाने की, जब तक मेन डंप वगैरह गार्बेज रिमूव नहीं होता। शहरी से भी यही अपील है कि हमारे साथ ताल्लुक हो रहा है, जगह जगह कचरा फेंकने के बजाय हमें हमारी हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करें, इंशाल्लाह उसको बर वक्त अटेंड किया जाएगा। सफाई मुहिम के इस मरहले में मुख्तलिफ सेक्टर्स में जमा कूड़ा क्रिकेट उठाया जा रहा है ताकि शहरी मूजी बीमारियों से महफूज रहें। इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए MCI मुतहरिक हो गई। मुख्तलिफ सेक्टर से जगह जगह से कचरा उठाया जा रहा है। मेयर शेख अंसर अजीज कहते हैं कि इस सफाई मुहिम में अवाम भी भरपूर साथ दें। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान हुकूमत ने SOPs के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी। एलामिया के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसी पर मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। अब्दुल गनी काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल गनी, बताइएगा। देखिए, बलूचिस्तान के ट्रांसपोर्टरों और सूबाई हुकूमत के दरमियान चंद यूं कबल बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने के हवाले से जो मुज़ाकरात हुए थे, उनकी रोशनी में सूबाई हुकूमत ने यह फैसला किया है और सूबे में मुकामी और बैनुल अज़ला जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर कोरोना वायरस की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल की तनाजुर में पाबंदी आयद की गई थी वो उठा ली गई है और SOPs के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बाकायदा खोल दिया गया है। कोयटा में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो मुसाफिर हैं वो SOPs की सख्ती से पाबंदी करेंगे और इस हवाले से अगर कवायद और ज़वाबित की खिलाफवर्जी की जाती है तो ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सफर करने वाले अफराद हैं उनकी मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और ऐसे अफराद जो या बुखार में मुब्तला होंगे या उनकी जानिब से मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा तो उन्हें बस में और दीगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं उनमें सफर करने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह इस इलामे में कोचिज में जो समाजी फासलों को बरकरार रखने के हवाले से जो SOPs में कुछ पॉइंट्स तय किए गए हैं उन पर भी उनको सख्ती से पाबंद किया गया है और ये भी बताया गया है कि सैनिटाइजर की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी तमाम कोचेज में और 18 सीटर जो वैन हैं उनके लिए ये बताया गया है कि सिर्फ 10 मुसाफिरों को ऐसे वैन में बिठाने की इजाजत होगी। और इस इलाके में जो एक और अहम नुकता जाहिर किया गया है वो ये भी है कि जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको ये पाबंद किया गया है कि वो तमाम जो मुसाफिर होंगे उनका डेटा भी अपने पास महफूज ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल गनी काकड़ हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस खत्म की जाएं, कोई फायदा नहीं हो रहा और फीसेस भी माफ की जाएं, इक़दाम से मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे और इसी तरीके से हमें तंग किया गया जो हम फीसेस भी दें और ऑनलाइन क्लासेस का भी इशू सॉल्व ना हो तो फिर इंशाल्लाह पूरे मुल्क के अंदर जो है वो और ये मेरा या किसी एक इंडिविजुअल का ये मामला नहीं है कि हम एहतजाज करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में एक चीज़ का सामना आ रहा है जो इंटरनेट का इशू आ रहा है, ठीक है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बलूचिस्तान में जहाँ पे रीच भी नहीं है इंटरनेट की वहाँ पर हमें बहुत सारे इशूज फेस करने पड़ रहे हैं। दूसरे जब ऑनलाइन एग्जाम शुरू हो गए अगर बिजली चली जाती है तो वो बच्चे का लिंक डाउन हो गया और वो पेपर सबमिट नहीं करवा सकता, ये बहुत बड़ा मसला है। स्टूडेंट्स होते हैं वो कौम का सरमाया है, फ्यूचर में बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठने वाले लोग हैं, अगर इनकी नहीं सुनी जाएगी तो फिर किसकी सुनी जाएगी। हम चाहते हैं कि हमें अच्छा LMS जो इन्होंने मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था वो दें तो हम हमें पढ़ने का शौक है, हम जानबूझ के तो ये सब काम नहीं करते। पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद चीन, कनाडा और सऊदी अरब से बढ़ गई है। आलमी मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 15 हो गया। मुल्क में मरीजों की तादाद 98,947 हो गई है जबकि अमवात की तादाद भी 2000 से बढ़ गई। मुल्क में कोरोना का फैलाव मजीद तेज हो गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 23,100 टेस्ट किए गए जबकि 4,960 नए केसेस रिपोर्ट हुए जो कि कोरोना मरीजों के हवाले से मुल्क में एक नया रिकॉर्ड है। टेस्टों की मजमूई तादाद 6,83,608 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद एक मरतबा फिर सबसे ज्यादा हो गई है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में कोरोना के मुसद्दिका मरीज
33,090 हो गए हैं। सिंध में 36,364, खैबर पख्तूनख्वा में 13,001, बलोचिस्तान में 6,221, इस्लामाबाद में 4,979, आजाद कश्मीर में 361 और गिलगित बल्तिस्तान में 927 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 67 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद मुल्क में इस वायरस से लुकमा अजल बनने वाले अफराद की तादाद 2002 हो गई है। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा होने के साथ साथ यहाँ अमवात भी सबसे ज्यादा हुई हैं। अदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में 683, सिंध में 634, खैबर पख्तूनख्वा में 561, बलोचिस्तान में 54, वफाकी दारुल हुकूमत में 45, गिलगित बल्तिस्तान में 13, जबकि आजाद कश्मीर में 8 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में 33,465 मरीजों ने इस वायरस को शिकस्त दे दी है। मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि मुल्क में 34% कोरोना के मरीज सेहत याब हो चुके हैं। इंतकाल करने वाले 74% अफराद की उम्रें 50 साल से जायद थी। अभी तक 75% वेंटिलेटर्स खाली हैं। 74% ऐसे लोग हैं कि जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और 74% ही ऐसे लोग हैं कि जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी थी। अब ये भी बहुत अहम बात है क्योंकि इसकी एक इम्प्लीकेशन है और इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर हम ऐसे इकदाम कर सकते हैं, हुकूमत भी और लोग भी और ख़ानदान भी, कि जिससे हम अपने ऐसे लोगों को बचा सकते हैं कि जिनके बीमार होने का एहतमाल ज़्यादा है और बीमार हो के क्रिटिकल सूरत हाल में जाने का इम्कान ज़्यादा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क में कोरोना वबा बेकाबू हो चुकी, हिकमत अमली नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। वो जरा कोरोना की बजाय अपोजिशन से लड़ रहे हैं। वो सारी तजावीज जो अपोजिशन हुकूमत को देती रही, हमने मार्च के महीने में कौमी असम्बली के इजलास से लेकर आज तक जितनी तजावीज हुकूमत को दी, हुकूमत ने उनके बरक्स अमल किया। हम मुसलसल कहते रहे कि खुदारा एक कौमी हिकमत अमली बनाए, पर हुकूमत को मुल्क के अंदर अपोजिशन और सूबों को एक पेज पर लाने की बजाय उनसे लड़ाइयां लड़ने की ज्यादा बड़ी तरजीह थी। आज भी हुकूमत के वज़रा कोरोना से लड़ने की बजाय अपोजिशन से और सियासी मुखालफिन से लड़ने को तरजीह दे रहे हैं। और अब आपको बताएं कि रूस ने कोरोना के तदारुक के लिए नई दवा तैयार कर ली है। दवा से कोरोना मरीजों को वबाई हमले की सख्तियों को बचाने में खातिर-खा मदद मिलेगी। माहिरीन के मुताबिक बर वक्त दवा के इस्तेमाल से निजाम तनफ्फुस को तबाह होने से बचाया जा सकता है। लेनामेब दूसरी तेज तरीन और मौसर दवा है जिससे इंसानी जानों के ज़िया को रोकने में मदद मिलेगी। कोरोना से मुतासरा अफराद पर दवा के इस्तेमाल के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि आवाम को तवील अरसे तक कोरोना के साथ रहना होगा। मुआशी सरगर्मियां जारी रखने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोरोना टास्क फोर्स के हफ्तावार इजलास से खिताब करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि आवाम गलत फहमी में ना रहें। कोरोना वायरस 15 दिन या महीने में खत्म होने वाला नहीं है। कोरोना के साथ रहने की आदत डालना होगी। जिंदगियां महफूज बनाने के लिए हिदायत पर अमल करना लाजिम होगा। उन्होंने कहा कि जब तक वज़ीर सेहत ना कहें, आवाम शादी और दीगर रसूमात समेत तमाम इज्तिमात खत्म कर दे। ईरान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। मुआशी सरगर्मियां जारी रखना नागुज़ीर है। और अब आपको बताएं कि अमेरिका में पुलिस तशद्दुद से जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ 12वें रोज भी एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ शहरों में होने वाले मुजाहिरों में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई है। वाशिंगटन डीसी की मेयर ने एहतजाज में शिरकत करके मुजाहिरीन से यकजहती का इजहार कर दिया है। सियाह फॉर्म जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हलाकत पर अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला थम न सका। मुजाहिरीन फिर व्हाइट हाउस के करीब पहुंचे और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की।
मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस के सामने सड़क पर ब्लैक लाइव मीटर्स लिख दिया। दीगर सड़कों पर भी ऐसी तहरीरें लिखी जा रही हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, पोर्टलैंड, विलियम्सबर्ग समेत दीगर शहरों में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हुए। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन ने ब्लैक लाइव मीटर्स के कार्ड्स उठा रखे थे। वाशिंगटन डीसी के मेयर म्यूरल बाउजर भी एहतजाज में शरीक हुई और मुजाहिरीन से यकजहती का इजहार किया। व्हाइट हाउस के करीब 16 स्ट्रीट के एक हिस्से का नाम तब्दील करके ब्लैक लाइव मीटर्स रख दिया गया। नॉर्थ कैरोलिना में मकतूल जॉर्ज फ्लॉयड की याद में तकरीब हुई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। शहर शहर होने वाले मुजाहिरों में जॉर्ज फ्लॉयड से इजहार यकजहती और कातिलों को सजा और पुलिस इस्लाहात का मुतालबा किया गया। नस्ल परस्ती के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं। लंदन में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ होने वाले एहतजाज में हजारों अफराद शरीक हुए हैं। जर्मनी, रोम और बैरूत में मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी भी हो गए। अमेरिका में पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर दुनिया के कई मुल्कों की आवाम सड़कों पर है। लंदन में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ मुजाहिरे में हजारों अफराद शरीक हुए। मुजाहिरीन ने मकतूल के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत दीगर मुल्कों में भी मुजाहिरे जारी हैं। मुजाहिरे में शरीक अफराद ने ब्लैक लाइव मीटर्स के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रूम और बैरूत में मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया तो मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। रूम में पुलिस ने मुजाहिरीन को पकड़कर सड़क पर ही दुर्गत बनाना शुरू कर दी। बैरूत में पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फेंके गए, जिस पर मुजाहिरीन ने भी जवाबी पथराव किया। झड़पों के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। वादी जन्नत नसीर, भारतीय फौज के हाथों जहन्नम में तब्दील। मजालिम का सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं लेता। आए दिन कत्ल गारत, मालो असबाब का लुट जाना, प्यारों की जुदाई, सफाक भारतीय फौज का खौफ, मजलूम कश्मीरियों का सुकून गारत होकर रह गया। मकबूजा कश्मीर में बुज़दिल भारतीय फौज के हाथों आग और खून का खेल जारी है। आए रोज छापे, गिरफ्तारियां, कत्ल गारत और लूटमार मामूल बनी हुई है। सफाक भारतीय फौज को न बच्चों पर तरस आता है, न माओ बहनों और बुजुर्गों की आहें जालिमों के दिल को नरम कर पाती हैं। अनगिनत नौजवानों को घर की दहलीज पर कत्ल किया जा चुका है। लातादाद खानदान आज भी इस उम्मीद पर जिंदा हैं कि शायद किसी दिन उनके प्यारे वापस लौट आएं, लेकिन अजियत इंतजार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। भारतीय फौज के हाथों दर्जनों घरों को मस्मार कर दिया गया। तबाहशुदा मकानात को भी न छोड़ा गया। जो बचा कुचा मालो असबाब था लूट लिया गया। खवातीन की बेहुरमती जराइम पेशा भारतीय फौज का शार है। वादी में ताहाल जबरी पाबंदियां बरकरार हैं, जबकि खुराक और अद्वियात की तरसील बंद है। राबता सर्विसेज भी मुअत्तल हैं। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ रहिएगा।